Now, what is taxonomy? So, this term taxonomy was given by Candolle. So don't confuse. Candolle only give the term. He only give the term, and you already know who is the father of taxonomy. Who studied the taxonomy is the Linnaeus. Okay. So Carl von Linnaeus, they are the father of taxonomy. But who give the term taxonomy? That is called Candolle. What is taxonomy? It is a branch of science deal with क्या करते हैं इसमें? Identify करते प्लस क्लासिफाई. हम लोग क्या क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर नाम देते हैं. ओके. एंड नॉमेनक्लेचर. सो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन करो उसके और उसके बाद उसको नाम दो. And that is all about your which one? That is called the taxonomy. Then there is another word which is called systematic. Systematic. What is systematic? Systematic is the word first used by whom? The father of taxonomy, that is Linnaeus. So Carl von Linnaeus, they have used this word systematic first time. He wrote the book, and what is the name of his book? Systema Naturae. So in this book, he used the word systematic. Who used the word systematic? Linnaeus, because at that time there is no word like taxonomy. Taxonomy is the word given by whom? That is called Candolle. Okay. So Linnaeus in his book Systema Naturae, who is Linnaeus? Father of taxonomy. He used that word systemic. So systematic. So what is systematic? It is the taxonomy. यानी taxonomy में कौन सा आएगा? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये तीनों चीजें प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. So there is some difference in between taxonomy and systematic. Systematic, taxonomy plus evolutionary relationship. किसके बीच में रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विच आर इन द वेरियस कैटेगरी. सो किसके बीच में रिलेशनशिप? ऑर्गेनिज्म के बीच में. और कौन से ऑर्गेनिज्म? बिटवीन टैक्सॉन, या हम लोग क्या बोल सकते? कैटेगरीज. Right? So, what is taxonomy? It is a word given by Candolle. Who is the father of taxonomy? Carl von Linnaeus, because he studied everything. What is taxonomy? Identification करना, classification और nomenclature देना. What is systematic? Systematic is the taxonomy plus evolutionary relationship. Relationship कहाँ पर? Organism में, जो different category में उनके बीच में, right? उनके जो बीच में categories के बीच में जो relation है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Systematic. Okay. Now what is categories? Or what is category? Okay. Category, it is a term given to a level. It is particular term. किसके लिए दी है? It term given to level between the, okay, level and technically you can say taxon. You can say taxon. Level को हम लोग technically क्या बोल सकते हैं? That is called taxon. जैसे example हो गया genus, species, family, order. ये जो सारे लेवल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटेगरी, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टैक्सॉन. सो व्हाट इज कैटेगरी? इट इज टर्म गिवन टू द लेवल, और उसका टेक्निकल नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन. दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन. टैक्सॉन क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमी में ईच लेवल को आप लोगों ने क्या किया है? पूरा हायरार्किकल सिस्टम में और एक जगह लेकर आए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. न्यूली एडेड देयर आर लाइक ये जीनस हो गया, स्पेसीज हो गया, फैमिली, ऑर्डर, ये पुराना था. फिर जैसे जैसे ये टैक्सोनॉमी और धीरे धीरे इवॉल्व होते लगा, लोग इसके बारे में स्टडी करने लगे, तो बाद में
इन टेक्सॉन में कुछ नए कैटेगरीज या नए टेक्सॉन ऐड हो गए, उनके नाम है किंगडम, फाइलम, ओके, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ये फैमिली में भी इसमें ही आता है, राइट। पहले जीनस था, स्पेसिस था, ऑर्डर था, राइट, या वेराइटी वगैरह बोलते थे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, तो ये थी टेक्सॉन। फिर धीरे धीरे इसी टेक्सॉन और कैटेगरी में कुछ नई कैटेगरी और टेक्सॉन ऐड हो गए, किंगडम, फैमिली, एंड दैट इज कॉल्ड फाइलम, ओके। नाउ व्हाट इज दिस सिस्टमैटिक? इट इज सिस्टमैटिक is the orderly arrangement. What is this systematic taxonomy? It is the order, ये सब का एक orderly arrangement, okay, and this orderly arrangement किसका? टेक्सॉन का, या हम लोग उसको बोलते हैं कैटेगरीज का। ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, इनको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, ओके। सो हायरार्की, इट इज द, पहले वही वेराइटी करके यूज करते थे वर्ड, अभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की मीन्स जैसे आप किसी ऑफिस में जाओ, सो ऑफिस में एक हायरार्किकल लेवल रहता, जैसे आपके पास स्कूल में हो तो स्कूल में भी एक लेवल, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर धीरे धीरे आप अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर स्पेशलाइजेशन होगा, तो ये एक हायरार्किकल लेवल हो जाए। वैसे ही ये जो कैटेगरीज है, जीनस, स्पेसीज, ऑर्डर, किंगडम, फैमिली, फाइलम, ये सारी कैटेगरीज और टेक्सॉन को एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में लगाना, उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल सिस्टम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द हायरार्की। तो जो वेराइटी वाला वर्ड था वो ड्रॉप किया गया और अभी उसके जगह क्या लिया गया? दैट इज कॉल्ड द हायरार्की। सो इस हायरार्किकल लेवल के हिसाब से सबसे पहले आएगा किंगडम, सबसे ऊपर क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड किंगडम, नाम ही किंगडम है। सेकेंड इज फाइलम और डिवीजन। तो ये फाइलम और डिवीजन हम लोगों ने इसलिए साथ में रखे क्योंकि फाइलम हम लोग एनिमल में यूज करते और प्लांट में हम लोग डिवीजन वर्ड यूज करते, राइट। सो ये दोनों एक ही कैटेगरी या टेक्सॉन है, बट एनिमल अगर होगा तो हम लोग फाइलम वर्ड यूज करते, प्लांट होगा तो हम लोग डिवीजन यूज करते। उसके बाद आएगा क्लास। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऑर्डरली अरेंजमेंट लिखते हैं हायरार्किकल लेवल की। सबसे ऊपर किंगडम आएगा, फिर किंगडम के नीचे फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम किसके लिए? एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए? प्लांट के लिए। अब फाइलम के नीचे का कैटेगरी या हम लोग टेक्सॉन बोल सकते, वो है क्लास। क्लास के नीचे आएगा ऑर्डर, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली, ऑर्डर के नीचे फैमिली, उसके बाद सबसे लास्ट में जीनस और स्पेसीज। सो ये एक एक जो है आपकी कैटेगरी है, या इसको हम लोग टेक्सॉन बोलते हैं। इसको आप ऑर्डरली अरेंज करो, इस पूरे ऑर्डरली अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे हायरार्किकल सिस्टम। कौन सी सिस्टम बोलेंगे? हायरार्किकल सिस्टम, राइट। सो इफ यू सी दैट दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस माइट बी द डिसेंडिंग order, okay। So if you see this is the highest class and this is the lowest, that this is the highest rank, or you can say highest taxon, and this one is the lowest. Species क्या? What is species? It is the smallest group, it is the smallest group, right, या most closely related। species में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? most closely related। अब धीरे धीरे ग्रुप बन जाएंगे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड डॉग हो गए, कैट्स हो गए, या रेप्टाइल्स। फिर ये ग्रुप जीनस में जाएंगे, फिर वो सब एक में आ जाएंगे। धीरे 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 ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स है वो एक ही ग्रुप बनते जाएगा। और किंगडम में दो कौन से? एक प्लांट है और एक एनिमल है। ये सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे ऊपर आएगा आपका ऑर्गेनिज्म।
तो ऑर्गेनिज्म का ही क्लासिफिकेशन किंगडम से स्टार्ट करते। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। विच इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप? स्पेसीज। तो इसीलिए छोटे छोटे ग्रुप है, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट टेक्सॉन भी बोल सकते हैं। सबसे स्मॉल वाला टेक्सॉन, सबसे स्मॉल ग्रुप किस में रहते हैं? स्पेसीज में। और लार्जेस्ट किस में कलेक्शन रहेगा? किंगडम में, है ना। एक बड़े से किंगडम में छोटे 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 गांव आएंगे, राइट। धीरे 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 उन गांव में एरियाज आएंगे, फिर उसमें छोटे छोटे नगर आएंगे, फिर धीरे धीरे एरियाज आएंगे और फिर एक घर आएंगे। सो दिस इज लाइक स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज द लार्जेस्ट वन। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट। और यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। यहां पर आपको स्मॉलेस्ट और सिमिलर वाले मिलेंगे, राइट, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहां डाइवर्सिटी ज्यादा है कि किंगडम में, तो आपको बोलना है यहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी है। सो वेयर एग्जैक्टली मोर डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म? जहां सबसे ज्यादा सिमिलर सिमिलर है वहां डाइवर्सिटी रहेगी, कि जहां सब कुछ है वहां डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के? 100%। एक बड़े से किंगडम में डाइवर्सिटी रहेगी क्या एक घर में डाइवर्सिटी रहेगी? ऑब्वियसली बड़े से किंगडम में डाइवर्सिटी रहेगी। सो किंगडम कैसा है? लार्जेस्ट है और मोस्ट डाइवर्स है। सिमिलैरिटी कम है। यहां पर स्मॉलेस्ट है, सिमिलैरिटी है एंड extremely related to each other है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड हायरार्कियल सिस्टम। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय कैंडोल एंड हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? दैट इज कॉल्ड द कार्लस वॉन लिनेस। फिर उन्होंने क्या लिखा था? एक बुक लिखा था, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया था, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द वर्ड? सिस्टमैटिक। व्हाट इज सिस्टमैटिक? टेक्सोनॉमी प्लस, ओके, व्हाट इज द सिस्टमैटिक? टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। और कहाँ लिखा था उन्होंने? उनका एक बुक था सिस्टेमा नेचुरी। सो इफ यू सी किंगडम, अगर आप किंगडम से लेके स्पेसिस में जाओगे, आप ऊपर से लेके नीचे नीचे जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब स्पेसिस से लेके आप किंगडम की तरफ जाओगे तो इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, बेसिकली दे विल आस्क यू द क्वेश्चन एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एज पर असेंडिंग ऑर्डर। एज पर डिसेंडिंग बोला तो आपको कहां से शुरुआत करना है? किंगडम से। अगर असेंडिंग बोला तो कहां से शुरू करना है? स्पेसिस से। इतना आपको याद रखना है, राइट। सो ये देखो यहां पर क्या है? स्पेसिस और फिर आएगा किंगडम। अगर उन्होंने बोला एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, एज पर डिसेंडिंग, तो बड़े से लेके छोटे तरफ आना है। उन्होंने बोला असेंडिंग, सो छोटे ग्रुप से लेके किंगडम की तरफ जाना है। सो आपको ये नोट डाउन करके रखना है। अगर उन्होंने असेंडिंग आपको बोला, इफ दे आस्क यू द असेंडिंग ऑर्डर, सो कहां से कहां जाना है आपको? स्पेसिस से जाना है आपको किंगडम की तरफ। अगर उन्होंने आपको डिसेंडिंग के बारे में बोला तो आपको किंगडम की तरफ से आपको जाना है नीचे स्पेसिस। सो क्वेश्चन माइट बी एनीथिंग, सो विच इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड एज पर द दैट इज कॉल्ड असेंडिंग। एज पर अगर उन्होंने असेंडिंग पूछा तो नीचे से ऊपर, तो आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं। क्लोजली रिलेटेड क्या हो गया? स्पेसिस हो गया। ओके, विच इज मोस्ट डाइवर्स पूछा, एज पर द असेंडिंग ऑर्डर अगर उन्होंने पूछा तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे डाइवर्स कौन सा है? किंगडम है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे डाइवर्स पहले आएगा कि बाद में आएगा? सबसे डाइवर्स पहले आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द हायरार्कियल, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिस। अभी हम लोग स्पेसिस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाला देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिस। The term species was given by John Ray. Okay, this is one of your species. ये तो आपको सबको पता है. Okay, that is donkey. So what is species? It is a biological concept. Okay, it is the biological concept of species is given by who give the term? Term was given by John Ray. और स्पेसिस का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है स्पेसिस का, ये सबसे पहले दिया था अर्नस्ट मेयर। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था इनका, राइट। सो कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर
and term was given by, that is called John Ray. Okay, what is species? Very simple definition, a group of closely related organisms. So what is species? हम लोगों ने already लिखा है यहाँ पर. What is species? A group of closely related animal, that is called the species. Okay, किसको हम लोग क्लोजली रिलेटेड बोलते हैं? दोज हु कैन इंटरब्रीड इन द नेचर. ओके, सो व्हाट इज स्पेसीज? दोज हु कैन इंटरब्रीड among themselves in nature normally. That is, I am saying that is the normally. और सबसे इंपॉर्टेंट है, they should produce fertile offspring. ये है सबसे इंपॉर्टेंट. क्या प्रोड्यूस करना चाहिए उन्होंने? जो भी वो बच्चे तैयार करेंगे वो कैसे होने चाहिए? फर्टाइल. ओके, सो व्हाट इज स्पेसीज? स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ similar organism. It is a group of closely related organism. They can interbreed among themselves and they can produce the fertile offspring. This fertile word is very important. Which word? That is called the fertile word. It is very very important. हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको छोटा कर देते हैं, right? So we can make it little bit smaller. वो अभी बीच में नहीं आएगा. So what is species? Those who can interbreed, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते among themselves in nature, natural system में. ओके, एंड प्रोड्यूस, ब्रीडिंग करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा रहेगा? दैट शुड बी फर्टाइल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड क्लोजली रिलेटेड? क्लोजली रिलेटेड यानी क्या? मैंने बोला ना, it is the group of animal which are closely related. They can interbreed among themselves in nature. So closely related, what is meant by closely related? Okay, same ancestral origin. उनका जो ओरिजिन है वो सेम एंसेस्ट्रल ओरिजिन होना चाहिए, राइट? यानी उनकी जो जीन्स है वो भी सेम होनी चाहिए. उनका जो जीन का पूरा पूल है सेल में, इट शुड बी सेम. सो विच यू कैन से क्लोजली रिलेटेड, जिनका एंसेस्टर सेम रहेगा या उनका हम लोग जीन पूल. सो व्हाट इज स्पेसीज? स्पेसीज आर क्लोजली रिलेटेड एनिमल, दोज हु कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ इन नेचर. ओके, एंड वट एवर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, उनका जो भी बच्चा है वो कैसा होना चाहिए? फर्टाइल. ये एक पहली बात. दूसरा, व्हाट इज क्लोजली रिलेटेड यानी क्या? उनके एंसेस्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये ब्रदर एंड सिस्टर है और इनके एंसेस्टर उनके मॉम एंड डैड है, दैट्स व्हाई दे आर क्लोजली रिलेटेड. सो वैसा ही व्हाट इज स्पेसीज? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल, दोज हु कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड दे शुड बी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ओके, जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो फर्टाइल. और क्लोजली रिलेटेड है, सेम एंसेस्ट्रल ओरिजिन, उनका जो जीन पूल है सेम होना चाहिए. अब इसमें क्या होता है? एक एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्यों? उन्होंने बोला है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है. ओके, ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए? फर्टाइल. नेचर में कुछ दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन है. पहला है, द फर्स्ट वन, इफ यू सी देयर इज वन एनिमल विच इज कॉल्ड म्यूल, विच इज कॉल्ड म्यूल. आप लोगों ने सुना होगा म्यूल. व्हाट इज म्यूल? म्यूल, इट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ, अब यहां पर ज्यादा क्लोजली रिलेटेड में कौन से आ गए? डोंकी प्लस हॉर्स. ओके, सो इफ यू सी, दिस इज द हॉर्स. ओके, आई विल जस्ट मेक इट बिगर. नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा सामने ले लेते, यू कैन सी द हॉर्स. थोड़ा इधर ले लेते, इधर आ जाते, थोड़ा सा पीछे से देख लेते, सो यू कैन सी द टेल. तो ये आपको दिख रहा है, उसके पैर, 4 पैर है जमीन पर, राइट? नाउ आई विल जस्ट रोटेट इट. तो ये हो गया उसका हॉर्स का बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, डोंकी तो पहले देख लिया था आप लोगों ने, थोड़ा कार्टून था. तो आप लोगों ने सबने डोंकी भी देख लिया, अभी आप लोगों ने हॉर्स भी देख लिया, राइट?
अब ये बेसिकली इफ दे म्यूल नेचर में आ गया है, डोंकी और हॉर्स का जब ये होगा ब्रीडिंग, ओके, सो व्हाट इज दैट कॉल, मेल इज डोंकी, डोंकी समझ लो मेल डोंकी रहेगा और हॉर्स फीमेल रहेगा। इनको जो बच्चा होगा डोंकी और हॉर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूल। ये तो ठीक है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड है, एंसेस्टर एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये जो म्यूल रहता है ये स्टराइल रहता है। म्यूल कैसा है, व्हाट इज मीन बाय स्टराइल, यानी म्यूल ब्रीडिंग नहीं कर सकता। म्यूल व्हाट इज दैट कॉल्ड, दे कैन नॉट गिव द बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। सो अब क्या हो गया, अगर वो बर्थ नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टराइल बोलेंगे, राइट। तो डोंकी भी स्टराइल नहीं है, हॉर्स भी स्टराइल नहीं है, लेकिन अगर हॉर्स ब्रीड विथ डोंकी तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, म्यूल किया। क्लोजली रिलेटेड है, हम लोगों ने डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखे जाए तो इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ बट दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन म्यूल कैसा है, स्टराइल। म्यू कैसा है, बेसिकली स्टराइल। इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, यू कैन सी द म्यूल इज स्टराइल, ओके। तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल, एक्सेप्शन। ये जो हमारा स्पेसिस का डेफिनेशन है, हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन रहेंगे। स्पेसिस यानी क्या, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ नेचर में, दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इसके एक्सेप्शन है, फर्टाइल नहीं है। नॉट नेचुरली हॉर्स, फीमेल हॉर्स that is breed with the male donkey and they produce the mule। तो ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए। आपको ये ऐसे कोई पूछते नहीं कि इसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो गया, डोंकी अगर फीमेल था और अगर हॉर्स अगर मेल रहेगा, और इन्होंने ब्रीडिंग किया, सो दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द स्टराइल दैट इज मील जैसे है, म्यूल जैसे, उसको हम लोग हिनी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिनी बोलते हैं। बट ये नहीं है आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है आपको, व्हाट इज म्यूल, म्यूल इज द स्टराइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ द इंटरब्रीड अमंग द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। तो आपकी डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया। तो ये हिनी वाला आपको याद रखना है तो रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये मेल फीमेल की हमें भी कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना पता चाहिए, डोंकी ब्रीड विद द हॉर्स, इंटरब्रीडिंग किया, उन्होंने ऑफस्प्रिंग कैसा करना चाहिए था, फर्टाइल, लेकिन तैयार कैसे हुआ, म्यू स्टराइल। तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है, हम इसको निकाल देते हैं और यहां पर एक दूसरा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइगॉन। एक टाइगॉन करके, आपने टाइगर सुना है, आपने लायन सुना है, राइट। आपने टाइगर सुना है, आपने लायन सुना है, राइट। बट नेचर में, इन द फॉरेस्ट, नेचुरली ऐसा कभी होता है, व्हेन टाइगर इंटरब्रीड विथ लायन, ओके, व्हेन टाइगर इंटरब्रीड विथ द लायन, या यू कैन से लायनेस, ये हो गया आपका मेल, ये हो गया टाइगर, मेल वाला टाइगर और फीमेल वाली लाइनेस, whatever the offspring which is produced, that is called tigon, that is called the tigon. But such type we can produce in a captivity. What is mean by captivity? ह्यूमन कंट्रोल। ये जो एग्जाम्पल है ये नेचर में का एग्जाम्पल है म्यूल, और ये एग्जाम्पल है कैप्टिविटी में का। ये नेचर में ही होता है, लेकिन कैप्टिव, व्हाट इज मीन बाय कैप्टिविटी, जहां ह्यूमन देखते रहते क्या हो रहा है, ह्यूमन के कंट्रोल में है, ओके। ये ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, राइट। और ह्यूमन के कंट्रोल ने क्या प्रोड्यूस किया, ये टाइगॉन। व्हाट इज टाइगॉन, इट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ टाइगर एंड लायनेस, ओके। अब आप देख लो, क्लोजली रिलेटेड ये स्पेसीज है, ये आपका हो गया, दैट इज कॉल्ड द टाइगर, ओके। देख लो, आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नाउ यू कैन सी द टाइगर, okay, this is your tiger. Now we will see the lion, okay. So if you see the lion, now you can see the lion. So if you interbreed tiger and lion, you will get tigon. You will, इसको छोटा कर देते, you can get the tigon. और ये नॉर्मली नेचर में नहीं होता, कैप्टिविटी में होता। अब किसी ने पूछा कैप्टिविटी क्या है, कैप्टिविटी यानी ह्यूमन कंट्रोल वाला नेचर।
दैट इज ह्यूमन, जिसका ह्यूमन में कंट्रोल रहे। जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट में हम लोग जाते हैं ना जंगल सफारी के लिए, दिस इज काइंड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है, वहां पर आजू बाजू में ह्यूमन का कंट्रोल है। उस कंट्रोल में टाइगर और लायनेस ने अगर मीटिंग किया, दे प्रोड्यूस द टाइगन, और टाइगन भी कैसा है, स्टराइल है, राइट। ऐसे ही टाइगन है, लाइगर भी है, एक लाइगर है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में सिर्फ म्यूल का एग्जांपल दिया है। व्हाट इज लाइगन? लाइगन इज द मीटिंग बिटवीन मेल लायन प्लस फीमेल टाइग्रेस, ओके, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, इसलिए इसको लाइगॉन बोलते, लायन एंड टाइग्रेस, इट इज टाइगर एंड लायन। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, दे शुड इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड दे प्रोड्यूस व्हिच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल। और ये म्यूल और टाइगन और लाइगॉन क्या है, एक्सेप्शन है, किस डेफिनेशन के लिए, स्पेसीज की डेफिनेशन के लिए, राइट। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्पेसीज? तो स्पेसीज में क्या क्या लोगे आप, राइट, all like you can say पैंथेरा, ओके, पैंथेरा टाइग्रिस, हम लोग देखेंगे अभी कौन से। जैसे मैंने यहां नाम लिखा इस टाइगर का, पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये पैंथेरा इज द जीनस एंड टाइग्रिस इज द स्पेसीज, ओके। सो दिस टाइग्रिस कम्स अंडर द स्पेसीज, ओके। जैसे मैंगो के बहुत अलग अलग पेड़ है, जो किस में आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सो ये इंडिका इज द एग्जांपल ऑफ द स्पेसीज, ओके। जैसे हम लोग, हमारे इसमें हम किस में आते, होमो सेपियंस, हम किस में आते हैं, होमो सेपियंस, तो हमारा स्पेसीज कौन सा है, सेपियंस। तो इसीलिए हम सारे लोग कैसे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एंड वी कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो टाइग्रिस, इंडिका, सेपियंस, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दे आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसीज। ये पैंथेरा, मैंगीफेरा और ये होमो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ जीनस, ये नहीं देखने हैं हमको, ये वाले हैं। सो ये सारे जो टाइगर के टाइप आएंगे या इंडिका वाले थोड़े टाइप आएंगे, दे आर बेसिकली व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज द स्पेसीज। तो ये हो गया आपका स्पेसीज। नाउ इसको इधर कर देते हैं, ओके। अब हम लोग जाते हैं जीनस, स्पेसीज हो गया हम लोगों का कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज, ये स्पेसीज हो गया, अभी हम जीनस जाते हैं। सो व्हाट इज जीनस? सिंपल है, एक बार आपको स्पेसीज समझ में आ गया तो आपको जीनस समझ में आ जाएगा। व्हाट इज जीनस? जीनस आर स्पेशली क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। व्हाट इज जीनस? क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। सेम वाले अगर स्पेसीज आप साथ में लाओगे, देन यू कैन कॉल देम, दैट इज कॉल्ड जीनस। सो जीनस इज द कैटेगरी और टेक्सॉन, उसमें क्या आएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। अभी इसी तरह से आपका डेफिनेशन ऊपर जाएगा। व्हाट इज स्पेसीज? क्लोजली रिलेटेड एनिमल विच कैन इंटरब्रीड। व्हाट इज जीनस? क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। व्हाट इज फैमिली? क्लोजली रिलेटेड जीनस। व्हाट इज ऑर्डर? क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ऐसा करके सब किस में ऐड हो जाएगा, किंगडम में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट विल स्टार्ट द जीनस विच इज क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, सिमिलर स्पेसीज में। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दैट इज कॉल्ड पैंथेरा वाला। अब पैंथेरा एक है टाइग्रिस, दूसरा है पैंथेरा, एक है पैंथेरा टाइग्रिस, दूसरा है पैंथेरा लियो, और तीसरा है दैट इज कॉल्ड, बहुत सारे हम लोगों ने तीन ही लिए, दैट इज कॉल्ड पैंथेरा पार्डस। सो इफ यू सी दिस टाइग्रिस, लियो, पार्डस, ये किस में आते हैं, स्पेसीज है। सो व्हाट इज टाइग्रिस? टाइगर। व्हाट इज लियो? लायन। एंड व्हाट इज पार्डस? दैट इज कॉल्ड लेपर्ड, दैट इज कॉल्ड लेपर्ड। तो अगर आप तीनों को देखोगे, दे आर बेसिकली, टाइग्रिस एक स्पेसीज है, लियो एक स्पेसीज है, और पार्डस, दीज ऑल थ्री आर सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसीज है। अब ये सब सिमिलर है करके इनको एक ही जीनस में डाला है। देखो, द जीनस इज वन, दैट इज कॉल्ड पैंथेरा। सो लुक, व्हाट इज जीनस?
क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। कौन से? टाइगर, लायन, लेपर्ड। सो टाइग्रिस, लियो एंड पारडस वाले जो स्पेसीज है, इन तीनों डिफरेंट स्पेसीज को कौन से जीनस में डाला है? दैट इज कॉल्ड पैंथेरा। अगर आप एक बार तीनों को देखोगे तो आपको देखना, दिस इज कॉल्ड टाइगर। लुक एट, ये पहला आपका टाइगर। टाइगर की देखो टेल है, उसका माउथ देखो, उसके व्हाट इज दैट बॉडी स्ट्रक्चर देखो। अगर आप सामने से देखोगे इसको, राइट, साइड से अगर आप देखोगे, राइट, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द दूसरा वाला, दैट इज कॉल्ड द लायन। लायन भी देखो सेम है, ऑलमोस्ट टेल है, थोड़ा सा सामने से देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। यू कैन जस्ट मूव इट हियर, नाउ यू कैन सी लायन है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, एक लेपर्ड लाइक जो बहुत सारे हैं, राइट, स्नो लेपर्ड हो गया, राइट। सो इफ यू सी इट इज ऑलमोस्ट, लुक, आई विल जस्ट मेक इट बिगर, लुक एट दैट, दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द लेपर्ड। अगर आप टाइगर भी देखोगे इसके पीछे या लायन भी देखोगे तो आपको इस तरह का ही डेंचर मिलेगा, राइट। ये आपका कौन सा हो गया? लायन हो गया। अभी हम लोग टाइगर वापस देख सकते हैं। सो इफ यू सी द टाइगर, इफ यू सी देयर डेंचर, राइट, देखो उसके भी कैनाइन टूथ है। सो ऑलमोस्ट दे आर नॉट एग्जैक्टली, बट वो एक कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, राइट। सो टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो, इसको छोटा कर देते हैं हम। तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? टाइगर। इधर कर देते हैं साइड में, ओके। और थोड़ा सा आड़ा देखते हैं, यानी आपको दूर से दिखेगा। ये हो गया टाइगर, ठीक है। दूसरा आएगा लायन, उसके बाद लेपर्ड। सो ये तीनों जो डिफरेंट स्पेसीज है, किस में डाले आप लोगों ने? एक ही जीनस में डाले, दैट इज कॉल्ड पैंथेरा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग देखते, ये तो जाने दो, एनिमल का हो गया। थोड़ा सा प्लांट में देखते। प्लांट में कैसा है? एक सोलेनम करके, सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम नाइग्रम, एक सोलेनम ट्यूबरोजम है, सोलेनम दैट इज कॉल्ड द नाइग्रम है, और एक है सोलेनम मेलेंजियोजा। तीसरा है सोलेनम दैट इज कॉल्ड मेलेंजियोजा या मेलेंजियोना, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय सोलेनम ट्यूबरोजम? सोलेनम ट्यूबरोजम हम लोग ये किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? पोटैटो के लिए। किसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड? दैट इज कॉल्ड पोटैटो के लिए हम लोग, ये पोटैटो इज अ कॉमन नेम, इसके लिए हम लोगों ने जेनेटिक जेनिस एंड स्पेसीज, पोटैटो कम्स अंडर विच स्पेसीज नेम? ट्यूबरोजम में। थोड़ा सा ऐसा गोल गोल रहता है। नाइग्रम दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग ब्लैक शेड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक नाइट शेड करके प्लांट है। उसके जो फ्रूट है थोड़े से आपको पोटैटो और ब्रिंजल या एग प्लांट जैसे दिखते हैं, राइट। सो जिसको नाइट शेड प्लांट के फ्रूट है, वो जिसको हम लोग नाइट है ना वैसे फ्रूट रहते हैं, इसको सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं। सोलेनम मेलेंजियोना, इट इज द वर्ड यूज फॉर विच फ्रूट? दैट इज कॉल्ड ब्रिंजल। ब्रिंजल ये बोलो या एग प्लांट बोलो, ओके। सो ये ब्रिंजल हो गया, दैट नॉट टोबैको, पोटैटो हो गया, एक ब्लैक नाइट शेड वाला हो गया। तो ये तीनों एक जैसी है, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने कौन से जीनस में डाले? कुछ कैरेक्टर इनके तीनों के सेम है, तो हम लोगों ने कौन से जीनस में डाले? सोलेनम में डाले। तो ये इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल किंगडम में, आपको थोड़ा सा प्लांट किंगडम में भी याद रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड जीनस, दैट इज कॉल्ड पैंथेरा, ओके। सो ये तो हो गया आपके जीनस के बारे में। नाउ आफ्टर जीनस क्या आ गया? फैमिली आ गया, दैट इज कॉल्ड फैमिली।